Hello everyone. Today my topic is establishment of company rule in India, chapter 9. My dear student, as you know, Vasco da Gama landed at Calicut in 1498 and it marked the beginning of European era in India. In 16th century, Portuguese established colonies in Goa. In next 17th century, so many European traders, adventurers, missionaries from Britain, Spain, France, Holland came India and they opened trading post here. So European traders came India for trading purpose. Adventurers came for adventuring purpose. And why missionaries came? Missionary camps for propagating Christianity in India. प्यारे दोस्त बच्चों, in 18th century के approx after the date of Aurangzeb, Mughal Empire disintegrated. So many they were the state of Bengal, Awadh, Hyderabad and Mysore, Sikh, Maratha, Jat and Rajput also set up their kingdoms. They behave independently from central authority. That's why a plot is set for the stage was set for European to take advantage of this situation. आगे आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि यूरोपियंस ने कैसे एडवांटेज लिया और कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी बिकेम रूलर हो गई। एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे रूलर हो गई, शासक बन गई, आगे हम लोग बताएंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग कंपनी? Many European trading companies established their trading center in coastal areas. Why they established trading center in coastal areas? There were so many reasons. First is so that they can export goods from India, because they came India by sea route. And another reason is sea route is cheaper than any other mode of transportation. The coastal sea route also make the trade easier and convenience. The third reason is that. इस तरह से 3 रीजन हम लोग पाते हैं और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बच्चों। तो द ट्रेडिंग सेंटर्स वी आर कॉल्ड फैक्ट्रीज। जो ट्रेडिंग सेंटर वो खोल कर रखते थे उसको वो फैक्ट्री बोलते थे। द प्लेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द फैक्ट्रीज वर्क, जहां वो लोग काम करते थे। फैक्ट्रीज वेयर फोर्टिफाइड एज ए सेफ गार्ड फ्रॉम राइवल ट्रेडिंग कंपनी। बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी भारत आए थे और उन ट्रेडिंग कंपनी से अपने जो गुड्स हैं उसको बचाने के लिए ये लोग क्या किए, फोर्टिफाई किए, किला बना लिए अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स में। यहाँ से वो मसाले, हैंडलूम्स, इंडिगो, साल्ट पीटर, गन, रॉ मटेरियल फॉर गन पाउडर, ये सब वो ले जाते थे और वो सोल्ड करते थे
at high rate in Europe and America, and this trading gives them huge profit margin. That's why they were competitor in India. All trading companies were competitor in India. और वह एक दूसरे को उखाड़ फेंकने का हमेशा प्रयास में रहते थे. अब द ईस्ट इंडिया कंपनी different. The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India. संसार में इससे ज्यादा अद्भुत कोई कहानी नहीं हो सकती कि एक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी यहाँ ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश करती है. ये अपने आप में एक बड़ी बात है. बट इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ डिलिब्रेट इफोर्ट बट सीरीज ऑफ, एक बार में ही यह नहीं हो गया. यह जो है एक सीरीज ऑफ एपिसोड है जो फाइनली लेड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो एक सीरीज ऑफ एपिसोड है, क्रम से वो जीते हैं. और आगे हम लोग इस बार इस चीज की चर्चा करेंगे. टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट खोलने की इजाजत ली सूरत में. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट लंदन 1680. 1600 एडी में एस्टैब्लिश्ड हुई थी और ये जहांगीर के रूलिंग के समय में भारत आई और एक ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में खोली. समय के साथ फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एस्टैब्लिश्ड हुआ 1639 में. फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज बिल्ट एट मद्रास. नाउ इट इज कॉल्ड चेन्नई. फोर्ट विलियम्स 1790 में एस्टैब्लिश हुआ, बिल्ट हुआ. In 1970, the British built Fort Williams in Calcutta, and in 1668, King Charles II of England got married with Portuguese princess. That's why Portuguese gifted Mumbai as a dowry to King Charles. So Bombay Castle was built in 1668. The Indian ruler assigned alliance to secure the help of British military to settle internal rivalry. On the other hand, the British company established friendly relationship with local princes to further their profit. वो आगे अपने प्रॉफिट्स को पाने के लिए लोकल प्रिंसेस से हैंडशेक करते थे. बदले में लोकल प्रिंसेस भी इंटरनल राइवलरी को सेटल करने के लिए हाथ मिलाते थे. Both were taking advantage of the situation. British introduced divide and rule policies here. As a result, the Indian princess began, बाद के समय में इंडियन प्रिंसेस क्या हुए, became mayor
परपेट इन हैंड ऑफ इंग्लिश, कठपुतली बन करके रह गए। डू यू नो, ब्रिटेन में बहुत सारी और भी कंपनियां थी, बट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय प्रिविलेज पोजीशन with British government and was guaranteed a special right and trade monopoly and tax exemptions in India. उसे बहुत सारी छूट मिली हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, भारत में, और दूसरी किसी भी कंपनी को वो सब सुविधाएं भारत में प्राप्त नहीं थी। हाउ कुड ए ट्रेडिंग कंपनी बिकेम एन इंपीरियल पावर, कैसे हो गई इंपीरियल पावर, कैसे एस्टैब्लिश कर सकी, ये देखना है हमें। द रियल आंसर इसका क्या है? द रियल आंसर इज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इंपीरियल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर यूरोपियन, दूसरे यूरोपियन कंपनी से अपने ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के क्रम में वह जो है इंपीरियल पावर बन गई। The company came into conflict with other foreign traders and hence built up its own military and administrative department. जब दूसरे सीन हैं, दूसरे कंपनियों से ये सब जब इन्हें कंपटीशन होती थी तो ये क्या किए कि अपनी मिलिट्री रखने लगे और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किए ताकि अच्छे से कंपटीशन कर सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें, और समय के साथ यह जो है डिफरेंट पार्ट्स भारत का जीतते चले गए और कंपनी रूल इंड हुआ भारत में 1858 में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। Then India goes to ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर में चला गया। नेक्स्ट वीडियोस में डियर स्टूडेंट हम कर्नाटिक वार क्रम से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी।